اور اس وقت آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں، پیپلز پارٹی کی سی ای سی نے استعفوں کو نواز شریف کی واپسی سے مشروط کر دیا ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ استعفے سینٹ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، لیکن نواز شریف کو وطن واپس لا کر لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہیے۔ اسی پر مزید جانیں گے، ارباب چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارباب بتائیے گا مزید کیا فیصلے کیے گئے اس اجلاس میں؟ جی، آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ملک کی سیاست کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلے کیے گئے، جس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر استعفوں پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، میاں نواز شریف کو وطن واپس آ کر لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو مزاحمتی سیاست کے لیے تیار ہے۔ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ جمہوری قوتوں کو جھانسے میں نہ آنا چاہیے۔ جھانسا سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جمہوری قوتوں کو جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، ہم نہیں بی این اے نہیں بن سکتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتی۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں استعفوں کے معاملے پر زبردست بحث ہوئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پی ڈی ایم کے اعلامیہ میں کہیں بھی سینٹ انتخابات رکوانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نئی بات سامنے آئی ہے کہ پی ڈی ایم کے اعلامیہ میں کہیں بھی سینٹ انتخابات رکوانے کا ذکر نہیں ہے۔ اجلاس میں یہ کہا گیا کہ اے پی سی کے اعلامیہ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مناسب وقت پر استعفے دیے جائیں گے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پی پی کے سینئر رہنماؤں نے یہ کہا ہے ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے استعفوں پر متضاد رائے سامنے لائے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ شاہد خاقان عباسی کا نام ای سی ایل سے ہٹانے اور جی ڈی اے رہنما محمد علی درانی کے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کے معاملات بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں زیر بحث آئے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے قانونی ماہرین کی جانب سے یہ رائے سامنے آئی تھی کہ سیاسی اور انتخابی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ استعفے دینے کے باوجود بھی سینٹ انتخابات میں ہم رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے، اور اجلاس میں یہ کہا گیا کہ ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے، اور سینٹ سمیت جتنے بھی انتخابی عمل ہے اس سے پیپلز پارٹی باہر نہیں رہ سکتی۔ صورتحال تقریباً واضح ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے استعفوں کا معاملہ میاں نواز شریف کی واپسی پر مشروط کر دیا ہے، اور میاں نواز شریف کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ وطن واپس آ کر لانگ مارچ کا حصہ بنے۔ نہ میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے، نہ لانگ مارچ کا حصہ ہوں گے، اور نہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کے استعفے سامنے آئیں گے۔ تو لگ ایسا ہی ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ رائے واضح نظر آ رہی ہے۔ سینٹرل کمیٹی کے اجلاس سے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں، بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سی ای سی نے استعفوں کو نواز شریف کی واپسی سے مشروط کر دیا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ پیپلز پارٹی سینٹ سمیت کسی بھی انتخابی میدان سے باہر نہیں ہوگی۔ استعفوں کی صورت میں حکومت 18ویں آئینی ترمیم ختم کر سکتی ہے، دیگر فیصلے ختم کر سکتی ہے، لانگ مارچ کا حصہ بننے کو تیار ہیں، لیکن اس کو بھی مشروط کر دیا ہے نواز شریف کی واپسی سے۔ صابر شاکر ہمارے ساتھ ہیں، اس پر بات کریں۔ صابر، یہ تو گیم ہی الٹی ہو گئی۔ اب تو نواز شریف کی واپسی کی حکومت باتیں کرتی تھی، یہاں تو پیپلز پارٹی نے مشروط کر دیا اپنے استعفوں کو نواز شریف کی واپسی سے۔ تو پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ پی ڈی ایم کا مستقبل تو جی میرا خیال ہے کہ 27 دسمبر کو اس کی تدفین تو ادھر گڑی خدا بخش میں ہو گئی تھی، جب آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو بلایا اور ان کو پھولوں کی چادر چڑھوائی ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ اور جناب محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پہ، اسی وقت اس کی تدفین ہو گئی تھی۔ اور یہ آصف علی زرداری کا آخری انتقام تھا جو انہوں نے شریف خاندان سے لیا۔ اور اب ظاہر ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، محترمہ مریم صفدر صاحبہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آئینی اور قانونی طور پہ پارٹی میں بھی، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی دوسرے بڑے صوبے میں حکومت ہے، سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اس کا لیڈر آف اپوزیشن آئے گا سینٹ میں،
وہ ایک مؤثر پارلیمانی قوت رہے گی، تو وہ کیوں مریم صفدر صاحبہ کے یا نواز شریف صاحب کو لائف لائن دینے کے لیے اپنی جو ہے پارلیمانی قوت ان کے حصے میں ڈالیں اور پھر وہ واپس اقتدار میں آ کے ان پہ پھر مزید مقدمات بنائیں. تو اس لیے پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ پہلے دن سے متوقع تھا، اور زرداری صاحب پیپلز مسلم لیگ نواز کو اور خاص طور پہ میں کہوں گا شریف خاندان کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پنگ پونگ کھیلتے رہے ہیں ان سے، اور ان سے تمام تر مزاروں پہ حاضریاں بھی دلوائیں، ماتھے بھی ٹکوائے، اور آخر میں آج انہوں نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ بالکل اسی اصول پہ ہے جب پاکستان تحریک انصاف دھرنا لے کے آئی تھی، لانگ مارچ لے کے آئی تھی. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کا ساتھ دیا تھا، پارلیمان کا ساتھ دیا تھا، اور کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور نون کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی اس وقت تگڑا کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اسی اصولی سیاست کا اعادہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان اور پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ہم کسی کے کہنے پہ اپنی جو سیاسی قوت ہے، پارلیمانی قوت ہے، وہ قربان نہیں کریں گے. وسیم بدامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. وسیم، اہم فیصلہ، بڑا فیصلہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، اور نواز شریف کی واپسی سے مشروط کر دیا استعفوں کو. کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو آپ؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ریت کے مطابق ہر سال 27 دسمبر کو ہوتا ہے. اس سال 29 دسمبر کو ہوا کراچی میں، ورنہ نوڈیرو میں ہوتا ہے 27 دسمبر کو. اب ظاہر ہے اس سال مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اگلے دن خطاب کرنا تھا، 27 کی رات کو ہوتا ہے، یعنی جلسے سے ایک دن پہلے. اور اگر اس رات یہ سارے فیصلے اور اس طرح سے بات سامنے آ جاتی تو اس کا اثر ظاہر ہے اس جلسے پر بھی پڑتا. پیپلز پارٹی نے اجلاس ہی ڈیلے کر دیا اور آج یہ حتمی چیز سامنے آ گئی ہے. یہ وہی چیز ہے کہ پی ڈی ایم کے تخلیق والے دن سے جو اہم نقطہ ڈسکس ہو رہا تھا وہ یہی کہ بھائی سڑکوں پر تو سب آ جائیں گے. اصل جو معاملہ ہے استعفوں کا، جو کہ ٹرمپ کارڈ ہے اپوزیشن کے پاس، جو کہ ہی حکومت کے لیے تھوڑی سی مشکلات کریٹ کر سکتا ہے یا زیادہ مشکلات، اس میں پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی. آج اس کو ایک آفیشیل شکل دے دی ہے پیپلز پارٹی نے. رائے تو سب کی یہی تھی، خیال سب کا یہی تھا کہ پیپلز پارٹی اس حد تک نہیں جائے گی، بہت ساری ریزنس کی بنیاد پہ جس پہ بات ہو سکتی ہے. اور پھر زرداری صاحب نے جب 27 دسمبر کو یہ الفاظ کہہ دیے گڑی خدا بخش میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں ایک پیج پر آئیں، لیکن برائے مہربانی ہمیں نہ سکھائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے سیکھیں. میں یہ کام پہلے بھی کر چکا ہوں، میں ایک عامر کو پہلے بھی نکال چکا ہوں. تو یہ کہہ رہے تھے آسان الفاظ میں پی ڈی ایم کو کہ بھائی عمران خان کو نکالنے کے معاملے پہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یہ کام کیسے کرنا ہے یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، یہ تم مجھے نہیں بتاؤ گے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے کام کرنا آتا ہے. تو استعفے نہیں ہوں گے، اور جب استعفے نہیں ہوں گے تو پھر میرا خیال ہے وہ سب کچھ بھی نہیں ہو پائے گا جو مسلم لیگ نون جس کی امید لگائے بیٹھی ہے، کیونکہ اکیلے مسلم لیگ نون کی استعفے افیکٹو نہیں ہوں. وسیم، تو آپ کے خیال میں، کیونکہ آج گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن پر پیپلز پارٹی نہیں چل سکتی، جس کا اشارہ آپ نے دیا کہ آصف علی زرداری نے بھی ایسی گفتگو کی، یہ باتیں نہیں ہوئی صرف، بلکہ محمد علی درانی جیل میں شہباز شریف سے ملے، یہ معاملات بھی زیر بحث آئے. شاہد خاقان عباسی کا نام ای سی ایل سے کیسے ہٹا، اس پر بھی بات ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں جو آج فیصلے ہوئے یہ شروع سے ہی فیصلہ ہوا تھا، یا یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دو خاص طور پہ، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے پیپلز پارٹی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس ڈسکس ضرور ہوئی ہوں گی. ایک تو ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں تو ان کا ڈسکشن ہونا بڑا نیچرل ہے. پھر اس لیے بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ بہرحال پیپلز پارٹی کو ابھی بھی پہلے جتنا نہیں، اس سے بہت کم، مطلب لیکن بہرحال یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. میں یہی کہنے لگا تھا بالکل کہ بہرحال پیپلز پارٹی کو پہلے جتنا نہیں اس سے کم، لیکن ایک حد تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی ہے نون کے اعتبار سے. اور یہ خدشہ ان کی صفوں میں پایا جاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پیچھے پیچھے ان کے معاملات طے ہو جائیں اور ہم اکیلے رہ جائیں. تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر یہ دو ڈیولپمنٹ ڈسکس تو ہوئی جو آپ نے کہا، لیکن یہ استعفے نہ دینے کا فیصلہ کیا ان دو ڈیولپمنٹس کی بنیاد پر ہوا؟ میرا خیال ہے نہیں. پیپلز پارٹی بہت کلیئر تھی ان معاملات پر پہلے سے ہی، دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو موجودہ حالات میں مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سے اپنی لڑائی کو اس تک آگے لے گئے، اس کے نتیجے میں دو کام ہونا طے ہو گئے. نواز شریف کے لیے سیاسی مشکلات پیدا ہونا اور پیپلز پارٹی کی لاٹری نکلنا، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تنہا کر کے آئسولیٹ کر کے سیاسی طور پہ مارے جانے کی کوشش کرے گی، جس کا پیپلز پارٹی
सियासी फायदा उठाएगी। और नंबर 2, पीपल्स पार्टी की बहरहाल टू बी फेयर विद देम अपनी पॉलिटिकल अप्रोच भी ये रही है। एक इलेक्शन से पीपल्स पार्टी ने एब्सटेन किया था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा सरेआम उसको रिग्रेट करती रही, कहती नहीं हमने गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। बेनजीर साहिबा शहीद हुई, नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया, जरदारी साहब उनके पास गए, कहा नहीं बाइकआउट नहीं करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी की अप्रोच है, जिससे आप अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच है कि सिस्टम से आउट नहीं होना चाहिए वरना इररिलेवेंट हो जाएंगे। बिल्कुल, और सिस्टम से आउट ना होके सिस्टम के अंदर रहकर ही, और यही पैगाम आसिफ अली जरदारी ने 27 दिसंबर को दिया। साबिर, आप कैसे देखते हैं, खासतौर पे जो जिक्र हुआ शाहिद खाकान अब्बासी कैसे चले गए बाहर, ECL से उनका नाम कैसे हट गया, फिर मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात, उसका नतीजा कुछ निकला हो ना हो, लेकिन यहाँ नतीजा निकल आया है और ये एक जो दरार है ये वाज़ेह तौर पर सामने आ गई। तो क्या आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि नून लीग डबल गेम खेल रही है? देखिए, नून लीग हमेशा ही डबल गेम ही उसने खेलनी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे इस वक्त कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल जोन में है और वो मज़ीद कंफर्टेबल जोन में हो जाएगी सेनेट के इंतखाबात के बाद। उसकी पार्लिमानी कुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा और पार्लिमानी कुव्वत जो ख़त्म होनी है वो होनी है मौलाना फजलुर रहमान की, मज़ीद कम हो जाएगी, और मुस्लिम लीग नवाज़ की, और ये दोनों की ख़त्म होगी तो जाहिर है वो मज़ीद क्या कहना चाहिए इररिलेवेंट होते जाएंगे। और ये जो पार्लिमानी सिस्टम है ये मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही आगे लेके चलना है और ये पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी। तो जितना भी मरियम नवाज़ का जितना भी एजेंडा है और मौलाना का, वो कंस्ट्रक्टिव तो है नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव है। वो तो ये चाहते हैं कि कुछ भी ना चले, क्योंकि वो नहीं है रिंग में। वो साबिर, इससे एक बात और वाज़ेह हो गई कि इनका एजेंडा कोई वाज़ेह नहीं है और नवाज शरीफ की वापसी से उन्होंने मशहूर किया। आपसे इस पर बात करेंगे। इस वक्त वफाकी वजीर फवाद चौधरी हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, बड़ी अहम खबर सामने आई है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, अहम फैसले हुए और उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे दें, लेकिन नवाज शरीफ वापस आएँ, उनकी वापसी से मशरूत कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, हम कोई भी इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि इस्तीफे जो हैं वो किसी भी तरीके से इलेक्शन की, यानी कि सेनेट इलेक्शन की राह में रुकावट नहीं बन सकते, और अगर हमने मैदान खाली छोड़ दिया तो बहुत से जमहूरी फैसले हैं, 18वीं आईनी तरमीम है, खदशा है, हुकूमत उसे ख़त्म कर दे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ वापस आएँ। तो आप पीपल्स पार्टी के इन फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कोई भी जो सियासी अकल और शऊर रखता है वो यही फैसला करेगा जो पीपल्स पार्टी ने आज किया है। ये जो इस्तीफों की बातें हैं ये तो फजलुर रहमान करते हैं या मरियम नवाज करती हैं या नवाज शरीफ करते हैं, जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जो लोग भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं वो सिस्टम के साथ रहना चाहते हैं, और यही वजह है कि जो पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप है जो इस वक्त सिंध में हुकूमत में है, और जाहिर है कि पार्लियामान के अंदर भी उनका बड़ा अहम रोल है, उन्होंने यही फैसला करना है कि सिस्टम के साथ रहेंगे। और आपने देखा है कि ये जो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे फजलुर रहमान हों, चाहे मरियम नवाज हों, जिनका सिस्टम में कोई हिस्सा नहीं है, जिनका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है और जो सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं, वो हर जगह मुस्तरद हो रहे हैं। आज जो है वो मौलाना शेरानी ने JUI अपनी असल सूरत में बहाल करने का ऐलान किया। फजलुर रहमान साहब को उन्होंने फारिग कर दिया JUI से, जो एक और बहुत मैं समझता हूँ कि अहम डेवलपमेंट है। दूसरा जो है कि आज पीपल्स पार्टी ने जो ये फैसला किया है ये भी एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, और एग्जैक्टली यही बात वो है जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाई आप सिस्टम के अंदर रहकर, ये तो इंतहाई पोजीशन ले ली पीपल्स पार्टी ने। आपके ख्याल में अब नवाज शरीफ वापस आएंगे फवाद चौधरी साहब, अगर उन्होंने अपनी ये जो तहरीक, सो कॉल्ड तहरीक, इसे आगे बढ़ाना है? तो देखिए, नवाज शरीफ के पास एक है कि वो अपनी सियासत करे आके, दूसरा है कि वो अपने पैसे बचाएं। आज तक नवाज शरीफ साहब ने हमेशा फैसला अपने पैसों के हक में किया है, अपने बिजनेसेस के हक में किया है, अपने बच्चों के हक में किया है। वो तो खुद बाहर बैठे हुए हैं, उनकी जायदाद बाहर आया, उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट कोई नहीं है। अपना शहबाज शरीफ और हमजा जो है वो जेल काट रहे हैं, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। आप देखेंगे, ये अभी तो आप पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं ना, आप आगे चल करके देखेंगी कि जो शहबाज शरीफ और जो बाकी लोग जो पार्लियामेंट के अंदर हैं इस वक्त PMLN के,
वो भी पीपल्स पार्टी के इस फैसले से मुख्तलिफ फैसला नहीं करेंगे। वो भी मरियम नवाज को यही बताएंगे कि ये इस्तीफे वगैरह जो हैं, ये आप तो अभी नई नई सियासत में आई हैं, आपको तजुर्बा नहीं है, ये मामलात आगे नहीं चल सकते। और ना सिर्फ आपने पीपल्स पार्टी के जो अपने अभी जो है वो हवाले से जो खबर दी है, ये एक बड़ा डेंट होगा कि पीडीएम को। अगला डेंट जो है वो पीएमएलएन से आएगा, जब वहाँ पे लोग जो हैं वो मुस्तरद कर देंगे मरियम नवाज शरीफ के इस्तीफों के मुतालबे को, क्योंकि लोग सिस्टम के अंदर रहना चाहते हैं। और मेरा ये ख्याल है यही पाकिस्तान की जो बका है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, उसके लिए अच्छा है। अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब वाज़ेह कर चुके हैं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो भी इशूज़ हैं वो पार्लियामान के अंदर आके डिस्कस करें, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बात करें और इंशाल्लाह वहाँ पे मामला हल करते हैं। पार्लियामेंट से बाहर तो मामला नहीं हल हो सकते। फवाद साहब, एक और अहम मामला ज़ेर बहस आया, इतराज़ किया गया पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कि शाहिद खाकान अब्बासी बाहर चले गए, मोहम्मद अली दुरानी जेल में शहबाज शरीफ से मिले, तो क्या पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि उनके साथ डबल गेम खेली जा रही है नून लीग की तरफ से? क्योंकि हिस्ट्री ये रही है ना, आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने पिछली दफ़ा 2008 के इलेक्शंस में क्या किया कि तमाम पार्टीज को कहा कि आप इलेक्शंस का बाइकआउट करें, और उसके बाद खुद इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। अब जो इमरान खान और पीटीआई को जो एक हिस्ट्री में जो लेसन मिला नवाज शरीफ से, वो उसी वक्त मिला था ना कि कभी इनके ऊपर कोई एतबार आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो किसी वक्त भी जो है वो अपने मफाद के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं। तो उससे, और पहले भी माजी में नवाज शरीफ ने आपने देखा कि जब इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जो मिसाक जमहूरियत साइन किया, उसके बाद इन्होंने जाके इफ्तिखार चौधरी से मिलके यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केस कर दिया। तो इन्होंने तो हमेशा जो है वो उनकी पीठ में खंजर घोंपा। तो जरदारी साहब को तो हिस्ट्री का पता है, बिलावल साहब तो चाहे शायद उनको उस तरह का ना पता हो, लेकिन जरदारी साहब को तो पता है कि नवाज शरीफ ने उनके साथ तारीख में क्या क्या किया है, लिहाजा वो कभी भी उनके हाथ जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और आज जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया है वो भी बिल्कुल एक दुरुस्त मौक़िफ़ लिया है। और फवाद चौधरी साहब, आसिफ अली जरदारी ने भी जो गुफ्तगू की उस पर आप रोशनी डालेंगे? वो कहते हैं हमसे सीखें, हम बताते हैं सिस्टम में रह के कैसे इन्हें बाहर किया जा सकता है। उन्होंने मिसाल भी दी परवेज़ मुशर्रफ की, उस पर क्या कहिएगा? खैर वो तो जरदारी साहब ने अपनी एक वो की है, मुशर्रफ साहब को जरदारी साहब निकालने वाले नहीं थे, जो निकालने वाले थे उनका जो है वो किसी वक्त बताएंगे कि कौन निकालने वाले थे। जरदारी साहब इतने भी बड़े माहिर नहीं है कि वो उस वक्त किस तरह से सदर को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो अलहदा बहस है। लेकिन ये है कि सिस्टम के अंदर रहने वाली बात बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि 1985 में जब एक बार पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी पीपल्स पार्टी को, और इस वजह से उनको अच्छी तरह पता है कि सिस्टम के अंदर रहना इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर रहने से ही जो मामलात हैं वो हल हो सकते हैं। और इसका एक डायरेक्ट नतीजा ये है कि अब पीडीएम फॉर्मली टूटने की तरफ जा रहा है। पहले तो एक फॉर्मली जो इनफॉर्मली हम देख रहे थे कि उसके अंदर दरारें थी, अब आप देखेंगी कि एक बाकायदा तौर के ऊपर पीडीएम जो है वो टूट जाएगा। और अगले ये जो चंद हफ्ते हैं उनमें आपको नजर आएगा कि पीडीएम के अंदर जो नून लीग और ये नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और मरियम एक तरफ रह जाएंगे, और बाकी तमाम लोग जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। आपको क्या लगता है पीडीएम की तहरीक अब आगे चलेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मशरूत कर दिया है नवाज शरीफ की वापसी से इस्तीफों को, तो पीडीएम अब आगे चलेगी? आपको पहले ये कहा कि पीडीएम तो अब ऑफिशियली बाकायदा तौर के ऊपर टूट जाएगी। उसकी वजह यह है कि पीडीएम के अंदर जो दरारें हैं वो अब मजीद उभर के सामने आ गई हैं। उनमें इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ये बिल्कुल जो नवाज शरीफ, मरियम और फजलुर रहमान एक तरफ हो जाएंगे और बाकी तमाम लोग जो हैं वो दूसरी तरफ हो जाएंगे। सो पीडीएम अब अगले चंद हफ्तों में बाकायदा तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और होने वाली डेवलपमेंट पर अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है नवाज शरीफ की वापसी से। इंतखाबात के हवाले से जो इस्तीफे हैं उसको मशरूत कर दिया, लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया, पीपल्स पार्टी ने तुर्क का पत्ता फेंका है, क्या कहिएगा? ठीक है,
काशिफ अब्बासी साहब की आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, उनसे उस पर बात भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, अहम इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आएँ तो इस्तीफ़ों के मामले पर गौर करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा हम लॉन्ग मार्च को भी तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ वापस आएँ। और इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी कैसे बाहर चले गए और अली दुरानी और शहबाज शरीफ की मुलाकात के पीछे क्या कहानी है। काशिफ अब्बासी साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? जी काशिफ साहब। देखिए, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, ठीक। लेकिन मुझे आप अंदाजे से आपका सवाल, अगर आप मुझे एक कॉल बैक कर ले तो बेहतर होगा, मैं आपका सवाल ठीक से सुन सकूं। मुझे आप ठीक है, हम आपको दोबारा कॉल कर लेते हैं और इस पर आपसे दोबारा गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात, उनके नाराज़ रहनुमाओं ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम जो हमें डिक्टेशन दी जा रही है हम उस पर नहीं चलना चाहते। इसी किस्म का मैसेज पीपल्स पार्टी ने दिया और वो ये कहते हैं कि हम सिस्टम में रहना चाहते हैं और किसी भी इंतखाबी अमल से दूर नहीं रहना चाहते। काशिफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है अब? जी, मुझे आ रही है जवाब। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पिछले बहुत से साल से अगर आप उसके ऊपर नजर डालें, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब की बनाई हुई काफ लीग की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी के अंदर एक चीज जो बड़ी कंसिस्टेंट रही है वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट के अंदर रहकर सियासत करने की जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो आपको हमेशा नजर आएगी। याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में सब पार्टियों ने जब इस्तीफे दे दिए थे आखिरी दिन, उस दिन भी पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने की बजाय वो पार्लियामेंट के अंदर रही थी और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बॉयकॉट किया। तो अभी भी लगता ऐसे ही है कि उस पोजीशन में शायद कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी का कंसिस्टेंट व्यू ये रहा है कि जब भी आप कोई फैसला करेंगे, कोई सियासी फैसला करेंगे, जरा आगे का सोच लें कि आगे उस फैसले के क्या उसमें मसाइल क्या होंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसको लेकर किधर जाना है। ये है पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स। आज भी अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो उस फैसले की बुनियाद इसके करीब तर ही नजर आती है कि वो किस तरफ जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो काशिफ साहब, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कल तक ऑप्टिक्स डिफरेंट थे, बातें एक जैसी थी, इस्तीफों की बात हो रही थी, आज इतना बड़ा फैसला ले लिया पीपल्स पार्टी ने, तो आपको लगता है इनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है? उन्हें लगता है कि हमारे पीछे कोई गेम हो रही है, कोई डील हो रही है, डबल गेम का खदशा लगाएं? देखिए, ये जो स्केप्टिसिज्म जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, कि हर सियासी जमात दूसरे की तरफ देखकर यही सोच रही है, वो के सामने बैठकर वो आपस में जो भी बात करें, पीछे बैठकर वो आपस में यही सोचते हैं कि क्या कोई पार्टी इस वक्त डील करने या बातचीत करने की कोशिश तो नहीं कर। ये स्केप्टिसिज्म तो हर पार्टी के खिलाफ है, रहा है और रहेगा भी, क्योंकि सारों का एक पास्ट है, एक तारीख है। पीपल्स पार्टी देखिए, सिस्टम का स्टेक देखिए, कौन सिस्टम में किस जगह खड़ा है, इस बुनियाद पर अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे तो पीपल्स पार्टी को गेन करने के लिए सवाए केसेस के और कुछ नहीं। इन इस्तीफों से पीपल्स पार्टी अगर सिस्टम से बाहर भी आती है और वापस जब जाएगी तो इसी पोजीशन में वापस जाएगी। ज्यादा सेमी गवर्नमेंट पंजाब में उतनी ही सीटें जितनी सीटें उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं या उसके करीब तक। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल सिस्टम से बाहर है, उनके हाथ में कुछ नहीं, ना मियां साहब के, ना मरीम नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब की पोजीशन भी तो तकरीबन कुछ ऐसी है। इस बुनियाद पे जब मुस्लिम लीग, जब पीपल्स पार्टी उन दोनों को देखती है, दे हैव नथिंग टू लूज। द लीडरशिप मुस्लिम लीग नून की और JUIF की, उन दोनों का हारने को कुछ नहीं है, लेकिन उनका गेन बहुत बड़ा है अगर वो सिस्टम को इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को गिरा जाते हैं और प्रेशर डाल जाते हैं। पीपल्स पार्टी उस पोजीशन में है नहीं। बिलावल साहब पहले कह चुके कि इस्तीफों का ऑप्शन न्यूक्लियर ऑप्शन। अब CEC में जाएंगे, CEC में ज़ाहिर है ये गुफ्तगू भी हुई है कि अगर इस्तीफे दे दें तो क्या सेनेट इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। जवाब ये है कि नहीं। अगर इस्तीफे दे दें, क्या ये कंपल्शन होगी हुकूमत पर कि वो। और आपको याद होगा कि आपके शो में एतजाज हसन साहब ने भी इसी किस्म की गुफ्तगू की थी, और जब बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि CEC के फैसला होगा वही एतजाज साहब का फैसला होगा। तो यही मंजर आपको दिख रहा है जो उन्होंने जवाब दिया था। देखिए, इस वक्त जब मैंने बहुत से पीपल्स पार्टी के दोस्तों से ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू की, वो सब इस्तीफों के खिलाफ है। 8 दिसंबर की जब मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में बहुत शोर पड़ा था कि ये तख्त या तख्ता आर्या पार की मीटिंग हुई, उसके बाद अगले रोज मौलाना साहब के घर पे एक और मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ बिलावल साहब और मरियम बीबी मौजूद थे। और उस मीटिंग की बुनियाद ये थी कि पीपल्स पार्टी ज्यादा कन्विंस नहीं थी इस्तीफों के मामले में। वो चाहते हैं कि हम एजुटेशन करें, हम लॉन्ग मार्चेस करें, रैलीज निकालें, लेकिन इस्तीफे का ऑप्शन एक बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन है, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहते।
कब करना चाहते हैं वो हालात और वाकयात देख के, अगर हुकूमत जाती दिखाई दे रही है, डगमगा रही है, डामाडोल है, वो सूरत में तो ये ऑप्शन समझ में आता है कि कोई इस्तीफों का ऑप्शन एक्सरसाइज करे। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ये चाहता है कि वो इस्तीफों का ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या उसके अंदर कोई बात होगी, वो कुछ पीपल्स पार्टी को वो ऑप्शन इतना अभी तक समझ नहीं आया। बिल्कुल, और इनके कानूनी माहिरीन ने भी कहा, एतजाज साहब भी यही कहते रहे थ्रू आउट के इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जी बिल्कुल, एतजाज साहब का व्यू भी यही है। दूसरे जो पॉलिटिकल साइड देखते हैं उनका भी ये ख्याल है कि ये इस्तीफे देने का सबसे अच्छा वक्त नहीं है। प्रेशर डालने के लिए इस्तीफों की गुफ्तगू करना तो और बात है, लेकिन इस्तीफे हैंड ओवर कर देना ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। उनका ये ख्याल है कि ये अभी इस वक्त टाइम नहीं है इस्तीफे देने। तो काशिफ साहब, आपको ये नहीं लग रहा कि इनको अब ये एहसास भी हो रहा है कि ये कोई हमारी ऐसी तहरीक नहीं है, जमहूरियत बहाली नहीं, क्योंकि हम तो इस जमहूरियत सिस्टम में रहना चाहते हैं, ये तो नवाज शरीफ की तहरीक है, वो क्यों नहीं वापस आते हैं? ये भी सोच आई है, और ये सोच कैसे आई, आप इस पर कैसे रोशनी डालेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी में दो बहुत डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं इस वक्त, ये याद रखिए। एक वो ग्रुप है जो सिर्फ हुकूमत गिराने की सोच रहा है, लेकिन एक बड़ा डिस्टिंक्ट ग्रुप वो है जो सिर्फ हुकूमत गिराने की नहीं सोचता, उसको ये भी पता है, जो पंजाब का खासकर ग्रुप है, कि हमारा असल मुकाबला पंजाब में अगर इमरान खान चला भी गया तो उसमें हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग नून से होगा। तो हम अगर हुकूमत गिरा भी देते हैं तो हमारा पुराना और बड़ा जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून से है, हमेशा से रहा है। इस वजह से वो मुस्लिम लीग नून और मियां साहब के साथ कुछ ज्यादा इतने को खुश नहीं है, अगर आप इसको इस तरह देखना चाहें तो। अब ये ग्रुप क्या प्रिवेल कर रहा है नहीं कर रहा, ये एक अलग गुफ्तगू है, किसी और वक्त की गुफ्तगू है कि वो अभी तक प्रिवेल नहीं कर रहा, सिंध ग्रुप ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। लेकिन ये सोच कि पीपल्स पार्टी का हिस्टोरिक एनिमी नंबर 1 पोलिटिकली था कौन? वो हिस्टोरिक पोलिटिकल एनिमी हमेशा से मुस्लिम लीग नून रही है, और वो पिछले 30 साल से रही है। वो चीजें, वो जो आपस के मसाइल हैं, जो आपस की टेंशन है, वो ओवरनाइट खत्म नहीं हो सकती। इस वजह से मुझे ये लगता है कि वो जो ग्रुप जो पहले भी आपको याद होगा दमादम मस्त कलंदर के नारे लगे और वो नारे लगवाए, जो पंजाब ग्रुप था, बिलावल साहब को उन्होंने निकाला 2016-17 में, जब जरदारी साहब ने दुबई से आके वो पूरी मूवमेंट और तहरीक खत्म कर दी थी। तो वो जब नारे, वो जितने भी नारे थे वो उस ग्रुप में लगाए थे। और अब ऐसा लगता है हालात देखकर समझता हूँ कि वो ग्रुप दोबारा ये चाह रहा होगा कि पंजाब में अगर पॉलिटिक्स होगी तो वो सख्त सियासी ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स होगी, जो कि इमरान खान साहब के भी खिलाफ हो और वो मियां नवाज शरीफ के भी खिलाफ हो। अच्छा काशिफ जी, मौलाना फजलुर रहमान कराची जलसे में शरीक नहीं हुए, इख्तलाफात सामने आए मौलाना और पीपल्स पार्टी के। मौलाना की अपनी जमात 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, इसके अलावा इस्तीफों को मशरूत कर दिया है पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की वापसी से। तो आपको क्या लगता है कि पीडीएम की अब तक की तहरीक में जो जमात है जिसने गेम किया है पीडीएम से, वो पीपल्स पार्टी है? नहीं, गेन तो पीपल्स पार्टी का ऐसा, अगर मटीरियल गेन आप देखें कि कोई मटीरियल गेन उन्होंने किया हो तो मुझे नहीं लगता कोई मटीरियल गेन है ऐसा। पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी स्टैंड आउट नहीं कर रही उस पॉलिटिक्स में। पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको देखकर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर पॉलिटिक्स और बिलावल भुट्टो या कोई और गेन कर रहा है। वो पॉलिटिक्स मुझे अभी तक नजर नहीं आई है पीपल्स पार्टी के। अभी इस वक्त गेन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून कर रही है, बिकॉज बड़ा नंबर है उनका वोट बैंक मौजूद है। अगर वो सिस्टम को गिरा जाते हैं तो मरियम नवाज शरीफ अपने लीडरशिप क्रेडेंशियल्स के साथ सबसे आगे, सबसे बढ़कर सामने आएंगे। उसके अलावा अगर आप मुझे कहें कि कोई और गेन कर रहा है, दैट आई डोंट थिंक इन मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के अलावा अभी तक इस पूरी मूवमेंट की किसी ने गेन किया। तो पीटीएम का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं आप फिर? क्योंकि जेयूआई ने आज ऐलान कर दिया, मौलाना शिरानी ने कहा कि हम जेयूआई पाकिस्तान है, मौलाना फजलुर रहमान की जमात उनकी अपनी जमात है, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जानिब से ये डेवलपमेंट आई। और जो नाराज रहनुमा है जेयूआई के, उन्होंने उनको झूठा भी कहा और कहा कि हमारा ये मंशूर नहीं था, हमारा दस्तूर तो कुछ और कहता है। देखिए, पीडीएम का फ्यूचर, पहला सवाल, इस वक्त कुछ भी कहना, कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। यू कांट रियली प्रिडिक्ट इस वक्त के पीडीएम किधर जाएगी और उसका फ्यूचर क्या बनेगा। ये फिजल आउट भी कर सकती है आहिस्ता आहिस्ता। अब तक कम से कम ये लग रहा है कि तहरीक आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी उसको डेंट लग रहा है। जलसा लाहौर का उसने डेंट डाला, मौलाना फजलुर रहमान, उनकी पार्टी के अंदर तकसीम। अब जब आप जलसे छोड़ के रैलीज पर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत थोड़ा इजी फील कर रही है। वो कहते हैं ना ब्रीदिंग इजी, तो द गवर्नमेंट इज ब्रीदिंग इजी राइट।
अगर आप आज की माहौल में देखें हालात, क्या हमेशा ऐसे रहेगा? नहीं। इस मुल्क में कोई भी इवेंट किसी भी वक्त कोई गलती किसी एक की, चाहे वो हुकूमत की गलती हो, कोई एक गलती आपका सारा का सारा जो आपने मोमेंटम तोड़ा हो या बनाया हो, बने हुए मोमेंटम को तोड़ सकती है, टूटे हुए मोमेंटम को बना सकती है। तो फ्यूचर बड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि क्या पीडीएम खत्म हो जाएगी, उसको बहुत बड़ा डेट लगेगा, आई कांट से दैट। अगले हफ्ता 10 दिन तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 31 जनवरी के बाद के 15-20 दिन में आपको पता लग जाएगा कि पीडीएम किधर जा रही है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, काशिफ अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, वसीम बदामी साहब और साबिर शाकिर हमारे साथ हैं, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।